Hello everyone, I am back with yet another typical and extremely lengthy question of input tax credit of GST paper 8 indirect taxation for CA final. This question in particular is in arguably one of the trickiest and lengthiest questions uh, that this chapter has. There is another question with the same name BND Limited जिसमें कैपिटल एसेट्स वाली एडजस्टमेंट्स नहीं है. तो अगर आप ये वाला BND कंपनी वाला क्वेश्चन कर लो तो आपका वो क्वेश्चन कंसिक्वेंटली हो ही जाएगा. So this becomes super important for revision of concepts and as a very technical question. It is also super lengthy, so please bear with me, but I'll ensure that this question will ensure that you revise most of the concepts of ITC. So let's get started. P&D company, a partnership firm in Maharashtra, a wholesaler of taxable product P and exempt product Q. तो यहाँ पे Q exempt है और P taxable है. Firm supplies these products only in eastern part of Maharashtra and these okay. The firm pays tax. These are irrelevant, so I'll skip to the relevant portion, which is the firm pays tax under composition scheme, which means that it's in Maharashtra and its previous year's turnover would have been less than 1.5 CR, right? Now, B&T company has furnished the following details in respect of its turnover. तो क्वार्टरली टर्नओवर दिया हुआ है फॉर क्वार्टर एंडेड 30th जून एंड फॉर क्वार्टर एंडेड 30th अगस्त सितंबर. पी का दिया हुआ है 60 lakhs और 50 lakhs रिस्पेक्टिवली. क्यू का दिया हुआ है 17.65 और 17 lakhs. नाउ स्टॉक के भी डिटेल्स दिए हुए हैं फॉर क्वार्टर एंडेड 30th जून, 30th सितंबर और 31st अक्टूबर. तो पी एंड क्यू का दिया हुआ है फॉर दीज रिस्पेक्टिव क्वार्टर्स एंड दिस मंथ, क्योंकि लेट्स सी सामने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दिया होगा व्हाई दे हैव गिवन स्टॉक फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ ऑफ अक्टूबर. द एंटायर स्टॉक ऑफ पी एंड क्यू अवेलेबल विद द फर्म ऑन 30th September is purchased during the first half year except consignment P valuing 3 lakh which has been purchased in the month of April of the preceding financial year. तो अगर आपको याद है कॉम्पोजिशन स्कीम में जब आप कॉम्पोजिशन से नॉर्मल लेवी में जाते हो, कॉम्पोजिशन स्कीम ends being relevant for you because you cross the relevant threshold. Then what happens is that आपको जिस दिन वो लेवी स्टॉप होता है उसके पिछले वाले दिन का आईटीसी का क्रेडिट आपको मिल जाता है. जो भी स्टॉक है और जो भी कैपिटल गुड्स है आपके पास उसका आपको आईटीसी मिल जाता है, एक्सेप्ट अगर कोई स्टॉक ऐसा हो जो 1 साल पहले ख़रीदा हो तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो परचेज़ किया था 30th सितंबर में, उसमें से प्रोडक्ट पी का है कुछ ख़रीदा हुआ 3 लाख वैल्यू का, जो कि अप्रैल मंथ में ख़रीदा था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का. लेट्स कीप रीडिंग. इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर no purchases were made and the products were sold at a profit margin of 20% on sales. We'll see how this becomes relevant later on. Extract of only the bill book maintained by the firm showed the following details. So why have they given bill book? What does bill book mean? It means that क्या क्या सेल हुआ है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. एज यू कैन सी यहाँ पे सारे अक्टूबर मंथ्स के सेल दिए हुए हैं. बिल नंबर, डेट, प्रोडक्ट ये वाला टैक्सेबल प्रोडक्ट है अपना, और क्यू जो है वो एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट है.
and this one is the total of P and Q both. Now और भी कुछ further details दिए हुए हैं of services availed, which means this has been purchased by B&D company. Freight paid to GTA during the period April to October. Assume that equal amount of freight is paid each month on 10th day of each month. तो यहाँ पे 1,40,000 दिया हुआ है और अप्रैल से लेके अक्टूबर इज़ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 मंथ. सो 1,40,000 by 7 इज़ लाइक 20,000 पर मंथ का आपका GTA का एक्सपेंस है. ओके. नेक्स्ट स्पेशल पैकिंग charges paid to packing company having expertise during January to October. Packing charges were paid for the goods which were transported between 11th to 28th day of the month. Goods were packed on 10th and transported. जो भी हो packing charges जो है अच्छा इसमें भी दिया हुआ है assume equal amount of packing charges which are paid on 9th of each month. पर ये जो पीरियड है ये जनवरी टू अक्टूबर का दिया हुआ है. ऊपर में था अप्रैल टू अक्टूबर तो वो 7 मंथ्स थे. यहाँ पे और भी यहाँ पे जनवरी टू अक्टूबर विच मीन्स 10 मंथ्स के दिए हुए हैं. तो आपको डिवाइड करना होगा एक मंथ के लिए विच इज़ लाइक 30,000 per month. Now the question says that you need to compute ITC credited to the electronic credit ledger of B&D company when it exists in composition scheme and becomes liable to pay tax under regular scheme in accordance with provision 18(1)(c) of CGST Act. Following additional information is also given. Now as I had mentioned, this is the capital goods wala special point which is there in this question and not in the other B&D question which is also there in the ITC chapter. तो कंप्यूटर का दिया हुआ है कब ख़रीदा है, वैल्यू कितना है, GST कितना है, प्रिंटर, मोटरसाइकिल, फर्नीचर, फिक्सचर, एयर कंडीशनर, एग्जॉस्ट फैन. विल सी व्हेन वी सॉल्व द सम ये कैसे रेलिवेंट होता है. और हाँ फाइनली वी नीड टू कंप्यूट द GST लाइबिलिटी विच इज़ पेएबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज द केस मे बी फॉर द पीरियड कवर्ड अंडर रेगुलर स्कीम. सो यहाँ पे पहले आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्रेडिट इनपुट सर्विसेज का अलाउड नहीं है और कैपिटल गुड्स का जो है वो हम लोग को कैसे मिलता है 5% पर क्वार्टर ऑफ अ ईयर और पार्ट देयर ऑफ माइनस करके फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस टिल इट इज़ being relevant for taking into consideration for the purpose of conversion into regular scheme. Okay. Further, ITC on supplies of inputs and capital goods shall not be available after expiry of 1 year from date of issue of tax invoice. So tax invoice जिस दिन इशू हो रहा है उसके एक साल के अंदर अंदर आपको उसका ITC क्लेम करना होगा वरना इट गेट्स लैप्स्ड. नाउ पहले हम लोग ITC ऑन इनपुट्स कैलकुलेट करते हैं. अब ये जो है ITC ऑन इनपुट्स वी विल कैलकुलेट टिल विच डेट. उसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन करना हो तो वी नीड टू रीड दिस पार्ट वंस अगेन. हम लोग को देखना होगा कि कितना टर्नओवर हो रहा है और कब से जो नॉर्मल स्कीम वो एप्लीकेबल हो रहा है. तो आइए चेक करते हैं. पहले तो 60 लाख्स प्लस 50 लाख्स आप भी मेरे साथ कैलकुलेटर चलाइए आपके लिए बेनिफिशियल होगा. 1765 प्लस 17 lakhs. So this brings us to 1,44,65,000 for both of these products till 30th of September. अब हम लोग नीचे बिल बुक से पता चलेगा कि उसके बाद कितना सेल हो रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो वील ऐड 2,03,000 प्लस 1,38,250 प्लस 106,250 कितना आ रहा है. ओके
it is coming to 1,49,12,500. So it is still not crossing that 1.5 crore wala limit, so we shall add 92,500 as well. And yeah, it is crossing the 1.5 crore limit, and precisely it is coming to 1 crore 50 lakhs 5,000. So yeah, so this is the relevant date since which it is being liable to pay tax under regular scheme and not under composition levy. So 3rd October. तो हम लोग यहाँ पे नीचे जो ITC है वो कब तक का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? ये रहा. We will calculate it till the date of 2nd October, whichever relevant year it is, 20XX. So day before the date on which it becomes liable to pay tax under regular scheme is the day which is relevant for the purpose of calculation of ITC, जिसका हम लोग ITC ले सकते हैं. तो अब हम लोग को stock of taxable units लेना होगा on 30th of September 2022. तो कितना आ रहा है? 30th, ऊपर चलते हैं क्वेश्चन में. हाँ, तो now first things first, P as you remember यहाँ पे taxable product P है, right? So ITC भी हम लोग को जिस पे टैक्स पे किया होगा उसी का मिलेगा. Q तो exempted है, उसका तो ITC मिलने का सवाल ही नहीं आता है. तो फिर सिर्फ input tax credit we will get on stock on 30th of September on this amount which is in our stock 10 lakhs का. तो हम लोग ने यहाँ पे दिया. परचेजेस कोई किया नहीं है हम लोग ने, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सो दैट इट्स नील. और सेल्स जो है कॉस्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड, क्योंकि हम लोग ये स्टॉक की कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमारे पास डेटा दिया हुआ है किसका? बिल बुक का. तो ये सेल है और यहाँ पे ऊपर में मैंने लिखा था, मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट मार्जिन वो हम लोग को बाद में काम आएगा, तो हमको यहाँ पे काम आएगा. ये 20% ऑन सेल्स जो है, सॉरी oops, that was question 29. Yeah, sorry about that. Yeah, so यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है सेल्स पे वो 20% है. तो यहाँ पे हम लोग के पास जो बिल बुक दिया हुआ है इसमें सेल्स के फिगर्स दिए हुए हैं essentially, right? तो we need to find the value of the stock. So we will just reduce the profit margin on these sales figures which has been given below. तो हम लोग को इन्वेंटरी के फिगर्स मिल जाएंगे. तो यहाँ हम लोग देखते हैं कितना हो रहा है. हाँ, तो हमारे पास 30th सितंबर को 10 लाख अमाउंट के स्टॉक पड़े हुए थे. उसमें से हम लोग ने 2 लाख 1,33,000 और 67,000 के स्टॉक सेल किए, पर ये हम लोग का सेल प्राइस दिया हुआ है, तो उसको तो हम लोग माइनस नहीं कर सकते कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी से. तो इसका हम लोग 80% लेंगे, क्योंकि 20% जो है ऑन द सेल वैल्यू प्रॉफिट मार्जिन है. तो वो आप आइदर इससे -20% कीजिए या फिर 0.8 डायरेक्टली या फिर 80% से मल्टीप्लाई कीजिए. यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी जो कि सेल हो गया. तो हम लोग के पास वो एज ऑन 2nd of October विच इज़ आर रेलिवेंट डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ITC वो नहीं पड़ा हुआ है. तो इससे अगर हम लोग ये माइनस कर दें देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट इज़ अवेलेबल जो हम लोग के गोडाउन में पड़ा हुआ है ऑन 2nd of October 2022.
ओके, सो दैट इज़ 6,80,000 इन दिस केस. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ था, मोर देन 1 ईयर स्टॉक का, मोर देन 1 ईयर ओल्ड स्टॉक का फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. सो अप्रैल मंथ में ऑफ प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ख़रीदा था ये स्टॉक, और अभी अक्टूबर हो गया, सो इट इज़ मोर देन 1 ईयर. सो ये 3 लाख वैल्यू का जो स्टॉक पड़ा हुआ है within our 10 lakhs, it has to be deducted. So we will deduct it right over here. As you can see, ये 3 लाख डिडक्ट कर दिया. सो फिर हम लोग के पास कितना पड़ा हुआ है, 3,80,000. अब इस पे ITC कैलकुलेट करते हैं, CGST और SGST. वाई? बिकॉज इंट्रा स्टेट ही हो रहा है, महाराष्ट्र में ही सेल हो रहा है, तो 9%, 9%. अब आते हैं कैपिटल गुड्स पे, जो कि sort of it is the highlight of this question, and it becomes a little bit tricky if you don't pay attention to the minute details at this point of time. So get ready. कंप्यूटर ख़रीदा था 1 Feb 2022 पे, जिस पे हम लोग को ITC मिला है 36,000 का, राइट? तो दिस इज़ द रेलेवेंट ITC, पर इससे हम लोग 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस करेंगे टिल द डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू नॉर्मल लेवी विच इज़ 2 अक्टूबर. तो ये फेब में ख़रीदा था 1 फेब को, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ विच क्वार्टर, जैन फेब मार्च क्वार्टर. तो जनवरी फरवरी मार्च बिकम्स 1 क्वार्टर, April May June becomes 2nd quarter, July August September becomes 3rd quarter, and since we are transferring into the normal scheme on 3rd of October, so October November December भी लेना होगा, because October के 1st से 3rd तक तो हम लोग ले रहे हैं, so part thereof also becomes important, and we have to take even that part as a quarter. So 4 quarters, तो हम लोग 36,000 से माइनस करेंगे 36,000 इंटू 5% इंटू 4 माइनस 36,000. So 36,000 into 5% into 4 is 7,200, minus 36,000 करेंगे, comes to 28,800, divided by 2 कर रहे हैं because we need to bifurcate it into CGST and SGST. Becomes very important, these minute things. So 14,400, 14,400. अब आते हैं प्रिंटर्स पे. प्रिंटर यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि 2 years prior to 1st January 2022 लिया हुआ है. So since it is more than 1 year, as you can see, ITC on supplies of inputs and capital goods shall not be available after expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice. और ये यहाँ पे clearly दिया हुआ है कि ये 2 years prior है, तो दिस बिकम्स इरेलेवेंट फॉर अस. इसका ITC लैप्स हो गया, हमको नहीं मिलेगा, भूल जाओ. अब मोटरसाइकिल पे आते हैं. मोटरसाइकिल यूज्ड बाय द स्टाफ फॉर कलेक्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम डेटर्स. नाउ वी नीड टू कनेक्ट दिस विथ एग्जेम्पशन चैप्टर. एग्जेम्पशन में हम लोग ने सेक्शन 17(5) में सीखा था कि ITC इज़ ओनली अलाउड ऑन मोटरसाइकिल्स विथ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 13%, with seating capacity up to 13%, only and only when it is used for further supply of such motor vehicles, transportation of passengers, or driving training के लिए, if such motorcycles are used. So since B&D is a trader, first line में दिया हुआ था, B&D is a trader, it is not involved in transportation of passengers or imparting training of driving और फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल्स, तो इसका तो ITC मिलने से रहा, ये नहीं मिलेगा. अब आता है फर्नीचर ऑन फिक्सचर पे, राइट. इसको ख़रीदा था 12th of July, आई थिंक इट सीम्स फाइन. सो यहाँ पे 72,000 ITC पे किया हुआ है इस पर,
on this capital goods purchase. So we will take 72,000, or since it was purchased on June, right? So it becomes relevant for which quarter? April, May, June, July, August, September and October, November, December. क्यों होगा ये? क्योंकि 12 जून को ख़रीदा था, तो फिर अप्रैल, मई, जून ये क्वार्टर का पार्ट बन रहा है, तो ये पूरा क्वार्टर लेंगे. उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सिंस 3 अक्टूबर को हम लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का क्वार्टर भी लेना होगा. तो यहाँ पे 3 क्वार्टर्स हमने ले लिया. अब 72,000 इंटू 5% इंटू 3 क्वार्टर्स कम्स टू 10,800 माइनस 72,000 करेंगे तो 61,200 आ रहा है. इसको डिवाइड बाई 2, बाइफर्केटेड इनटू CGST and SGST. Alright. Now, air conditioner. Air conditioner used in office. अब इसका डेट आप गौर से नोटिस कीजिए. ये 15 अक्टूबर को ख़रीद रहे हैं हम लोग, राइट? तो इसका तो पूरा ही ITC मिलेगा. इसका तो हम लोग जो ITC हम लोग को क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बताया है, when it exists in composition scheme, इसमें तो नहीं आएगा, बिकॉज composition scheme के लिए 2 अक्टूबर तक जो भी हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, कैपिटल गुड्स ही बोल दो या फिर स्टॉक इनपुट्स ही बोल दो, वो ही सिर्फ कंसिडर्ड होगा. चूँकि ये 15 अक्टूबर को ख़रीदा है, विच इज़ आफ्टर 3 अक्टूबर, we will consider the entire ITC under the normal scheme and not under this composition. At this point of time, we are calculating it for the purpose of composition levy, so we are not taking it. But yes, it is quite available and we will take it under regular scheme. Now, exhaust fan used in the go down. It has been purchased on 10th of March. ये तो मिल ही जाएगा, 9,000 का composition में ही मिलेगा. So इसका भी सेम वे में आपको कैलकुलेट करना होगा. 9,000 इसका 4 क्वार्टर्स होगा, बिकॉज वी हैव परचेज्ड इट ऑन मार्च. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 2nd, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3rd एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 क्वार्टर्स. फिर इसको भी डिवाइड कर देंगे तो 3,600 CGST एंड SGST. तो टोटल किया 48,600 और total ITC of inputs and capital goods is the grand total of this one, 34,200 plus 48,600 comes to 82,800 and 82,800. Alright, so this completes the entire ITC computation for the purpose of composition scheme. Now that we have already calculated the ITC, we will have to apportion it. तो हम लोग अब exempted और taxable turnover जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जो वर्किंग नोट 4 में दिया हुआ है इस क्वेश्चन के. ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए. Now, P, as you know, is our taxable turnover and Q is the exempted one. और यहाँ पे हम लोग को एग्रीगेट टर्नओवर दोनों का ऐड करके मिल जाएगा नीचे, राइट? सो पहले हम लोग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर निकालते हैं कि अपना कितना सेल हुआ है अक्टूबर मंथ में प्रोडक्ट पी का. तो एज वी नो, यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ, 10,000 स्टॉक पड़ा हुआ था एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर और एट द एंड ऑफ अक्टूबर 3,60,000 पड़ा हुआ है, विच मीन्स इसका डिफरेंस जो भी है ये सेल हो गया होगा. जो भी स्टॉक था
जो भी इसका डिफरेंस है वो सेल हो गया होगा और 3,60,000 एट द एंड ऑफ अक्टूबर पड़ा हुआ होगा, तो इसको हम लोग सेल लेंगे. बट दिस इज़ ओनली द स्टॉक अमाउंट, सो दिस इज़ एसेंशियली द कॉस्ट फिगर. इस पे हम लोग को जो मार्कअप है वो ऐड करना होगा सो दैट वी कैन अराइव एट द सेल्स फिगर. नाउ 20% ऑन सेल्स मीन्स 25% ऑन कॉस्ट. सो अगर हम लोग 10 लाख से 3,60,000 माइनस करें, वी आर गेटिंग 6,40,000 इंटू 1.12 इंटू 1.25% करेंगे तो वी विल गेट 8 lakhs which is the sale figure for the month of October, and they have exactly done that. ये देखिए 10 lakhs था at the beginning of the month, 3,60,000 हो गया at the end. तो डिफरेंस जो भी है वो स्टॉक सेल हो गया होगा, बट ये कॉस्ट है तो इस पे हम लोग मार्कअप चढ़ाएंगे 25% ऑन कॉस्ट बिकॉज 20% ऑन सेल्स है. सो इट कम्स टू 8 लाख रुपीज़. अब हम लोग को टर्नओवर रेगुलर स्कीम का निकालना होगा विच इज़ 3rd अक्टूबर से लेके 31st अक्टूबर तक. तो इसी फिगर से स्टार्ट करेंगे कि ये टोटल सेल था और इससे हम लोग माइनस करेंगे कौन सी फिगर्स जो फर्स्ट 3 डेज़ में जो भी सेल हुई थी. ये देखिए 2 lakhs, 1,33,000 और 67,000. तो ये तीन तो फर्स्ट 2 दिन में ही सेल हो गई थी, 3rd के पहले, जो कि रेलेवेंट डेट है. तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे. इट इज़ अ ह्यूज सम गाइस. या सो वी गेट 4 lakhs. ऑलराइट, अब क्यू का करते हैं. जस्ट सेम है जैसे हम लोग ने पी का किया था, एग्जैक्ट सेम वे में होगा. तो स्टॉक एज ऑन द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर वाज 2 lakhs और एट द एंड वाज 1,20,000. सो डिफरेंस इज 60,000 और 60,000 पे हम लोग 25% का मार्कअप लगाएंगे विच गेट्स अस टू 1 lakh. आई एम सॉरी, इट वाज 80,000. उस पर हम लोग 25% का मार्कअप लगाएंगे. स्लिप ऑफ टंग. सो दैट वुड बी इक्वल टू 1 lakh. अब फिर से सेम वे में 1 lakh से हम लोग स्टार्ट करेंगे. 1 lakh से फिर फर्स्ट 2 दिन में जो भी सेल हुआ था क्यू का विच इज़ 3,5,250 and 39,250. 3,5,250 and 39,250. तो इसका फिर एग्रीगेट टर्नओवर हो गया 8 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख प्लस 52,500. तो ये हम लोग का एग्रीगेट टर्नओवर हो गया पी क्यू सबका मिला के. अब आते हैं ऊपर में. अब हम लोग को आईटीसी का अपोर्शनमेंट करना होगा. कॉमन क्रेडिट जो भी होगा, जो भी है कैपिटल गुड्स का, जो कि यूज़ हुआ है बोथ फॉर द सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स. तो हम लोग ने ऊपर कैलकुलेशन की थी. यहाँ पे ये रहा कैपिटल गुड्स का जो है इट वाज 48,600 राइट. तो यहाँ पे 48,600 लिख लिया हम लोग ने. अब ऑफिस के लिए जो एयर कंडीशनर ख़रीदा था ना, जो मैंने कहा था कि नॉर्मल स्कीम में लेंगे, तो अब नॉर्मल स्कीम में ले लिया. उस पर 18,000 का देख लीजिए ऊपर में दिया हुआ है. ये रहा एयर कंडीशनर ख़रीदा था 15 अक्टूबर में 36,000 का. तो 36,000 बाई 2 18,000. CGST और SGST में बांट दिया हम लोग ने यहाँ पे, और इसको ऐड कर दिया जो भी कैपिटल गुड्स थे कंपोजिशन के लिए रेलेवेंट. सो इट बिकम 66,600 रिस्पेक्टिवली. अब इसको हम लोग, जैसे आप जानते हो कॉमन क्रेडिट कैसे अपोर्शनमेंट करते हैं,
हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, सो इट विल गिव अस द कॉमन क्रेडिट फॉर ईच टैक्स पीरियड विच इज़ लाइक अ मंथ, ओके। बिकॉज हम लोग कैपिटल गेंस का जो भी ITC होता है वो हम लोग 5 ईयर्स में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर इसमें 1 मंथ का निकल गया। अब इसको हम लोग एग्जेम्प्टेड में अपोर्शन करेंगे। सी कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तो ये फिगर लिया 1110 इंटू 52,500 बाई 45, 4,52,500। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, वी जस्ट कैलकुलेटेड इट, ये रहा, ये एग्रीगेट हो गया क्यू के लिए, सॉरी पी और क्यू के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर अंडर रेगुलर स्कीम। और इसमें से क्यू का जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है वो है 52,500। सो दिस इज हाउ इट इज़ कमिंग, 52,500 डिवाइड बाई 45, so it comes to 129 and 129 respectively। अब ये जो फिगर्स होंगे 129 and 129 each, these are going to be reversed for the calculation of the final tax liability for the month of October। मतलब हम लोग इसको tax liability के साथ add कर देंगे, okay। Now coming to the next working note, हाँ वर्किंग नोट 1, इसमें जो GTA को पे किया था रिवर्स चार्ज में, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन है। 20,000 वैल्यू है और 2.5 ईच, सो इट कम्स टू 500 and 500 ईच। उसके बाद पैकिंग एजेंसी को हम लोग ने पे किया था, उनसे स्पेशलाइज्ड पैकिंग के लिए सर्विसेज ली थी, तो अमाउंट था 30,000 ईच फॉर ईच मंथ, तो उस पर 9%, 2,700, तो टोटल हम लोग को ITC का जो क्रेडिट मिल रहा है ऑन इनपुट सर्विसेज, इट इज़ 3,200। अब इस पे कॉमन क्रेडिट का फिर से अपोर्शनमेंट होगा टू एग्जाम सप्लाईज इन द सेम वे। जो 3,200 है उस पर 52,500 डिवाइडेड बाई 45, 4,52,500, तो 371 और 371 आया। अब आते हैं हम लोग फाइनल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये रहा, फाइनली दिस क्वेश्चन इज कमिंग towards its end, not really its end but towards its end। तो taxable tax on outward supply of P and this is under the regular scheme, okay। तो आपको 3rd अक्टूबर से लेके 31st अक्टूबर ये पीरियड में जो भी टैक्स जो भी सेल हुए हैं, ऑफ कोर्स पी के, क्योंकि यही टैक्सेबल है, क्यू पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज इट इज़ एग्जेम्प्ट। तो ऊपर आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, तो यहाँ से कैलकुलेशन शुरू होगा पी के लिए 58,750 से लेके 58,750 प्लस 1 लाख प्लस 94,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, राइट। Where did it go? तो गाइज आई एम सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा। जैसे वर्किंग नोट 4 में हम लोग ने कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे नीचे वी हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड टर्नओवर फॉर द पीरियड 3rd of अक्टूबर से लेके 31st अक्टूबर तक का, तो यहाँ पे 4 लाख अमाउंट पे ही टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो ऊपर में 4 लाख पे 18% विच मीन्स 9% ईच, 36,000 आ रहा है। उसके बाद टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, जो GTA सर्विस पे हम लोग ने टैक्स कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे नीचे में 500 ईच, दिस विल बी पेएबल एज आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब जो रिवर्सल होगा ये 371 जो इनपुट सर्विसेज का
और कैपिटल गेंस का यहाँ पे हम लोग ने जो कैलकुलेशन किया 371 ईच और 129 ईच जो एग्जाम सप्लाई पे एट्रीब्यूटेबल है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे हमारे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे, राइट. सो वी आर गोना ऐड दीज and it is going to come to a total of 37,000 each. Now ITC we had already calculated in working note 3 over here. 82,800 ऊपर मैं कैलकुलेट किया था, उसके साथ एयर कंडीशनर जो है नॉर्मल स्कीम में परचेज़ किया था जब नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट हो गए थे 15th पे, उसको ऐड करेंगे. उसके साथ GTA पे जो भी है उसका भी पेमेंट पे हम लोग को ITC मिलेगा, और पैकिंग सर्विसेज पे भी इनपुट जो हम लोग ने लिया था, परचेज़ किया था पैकिंग सर्विसेज, तो उस पे भी हम लोग को ITC मिल ही जाएगा. So it comes to 1,04,000 each. We are going to deduct that. Okay, so जो भी GST liability है, since our ITC is more than that, so we will deduct 37,000. But please note that यहाँ पे 36,000 plus 371 plus 129 it comes to 36,500. हम लोग 36,500 तक ITC से पे कर सकते हैं, बट ये जो 500 रुपीज़ है, सिंस दिस इज़ RCM वी नीड टू पे इट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड नॉट द क्रेडिट लेजर. तो बाकी का जो ITC है दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड, एंड विद दैट we come to the end of this important and huge question. I think that this question covers a lot of important concepts and hence it becomes super important. Please try to practice this by hand, and all the best. Have a great day ahead.